countries are the most difficult to maintain relations with? You can ask, there are countries with whom you can ask, should we maintain relationship also? एक तो उस साइड बगल में है, तो अगर मैं कहूँगा अभी जो है बड़ी चुनौती है, to let us be honest, because all of us know one very difficult one is Pakistan, and I would say इसमें we should actually ourselves look why is this, because one reason for this is us. If we had from the very start been clear that Pakistan is using terrorism and ये हमें बर्दाश्त किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, we would have had a very different policy, not now. अभी 2014 में नरेंद्र मोदी आए, पर ये प्रॉब्लम जो है 2014 में शुरू नहीं हुई थी। मुंबई अटैक हुआ था तब भी नहीं हुई थी, ये हुई थी 1947 में। 1947 में द फर्स्ट पीपल जो पाकिस्तान से आए, कश्मीर में आए, कश्मीर को अटैक किया, वो टेररिज्म था। वो शहरों को, गांवों को जला रहे थे, वो they were just killing people on large scale, and these were people जो ट्राइबल लोग जो हैं पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, उनको पाकिस्तानी आर्मी ने आगे किया और कहा कि आप लोग जाइए, फर्स्ट टोटली डिस्टर्ब कश्मीर, उसके बाद हम लोग आपके पीछे आएंगे। अब हमने क्या किया, एक तो ठीक है आर्मी भेजी, कश्मीर का इंटीग्रेशन हो गया, आर्मी ने जो करना था वो कर रहे थे, अब कहीं बीच में हम लोग रुक गए, और उसके बाद रुकने के बाद कहाँ गए, यूएन गए। अब ये बताइए, अगर आप कोई भी अगर आप उस समय कहीं भी आप, ये टेररिज्म का शब्द नहीं है, यह है ट्राइबल इन्वेडर्स के, जैसे कोई वो लेजिटिमेट फोर्स थी। 65 में देखिए, 65 में भी पाकिस्तान आर्मी आने के पहले उन्होंने क्या किया, दे सेंट अगेन इन्फिल्ट्रेटर्स, सबोटाज, अब व्हाट वर दे वर टेररिस्ट अगेन। So we have to be very clear in our minds. In no situation is terrorism acceptable, or if any neighbor or anybody else, need not even be neighbor, anybody uses terrorism कि भाई मैं terrorism के through मैं आपको negotiating table में लाऊंगा, this should never be accepted. And कभी कभी मेरे से पूछा जाता है कि साहब अभी तो आप पॉलिटिशियन बन गए, पहले आप डिप्लोमेट थे, तो आप जानते थे पहले कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में बहुत कंटिन्यूटी। मैं उनको साफ साफ जवाब देता हूँ, हाँ 50% कंटिन्यूटी, पर 50% चेंज भी है, और एक चेंज है मुझे टेररिज्म पर चेंज, कि अगर आप मुंबई के बाद आप में से एक भी व्यक्ति, आप एक, I would like to see one person who feels that we should not have responded to Mumbai. Everybody in the country felt it. But yet, अगर आप उस समय, इसका अकाउंट है, उस समय के बाद में NSA ने लिखा था, उस समय के NSA नहीं, अगले NSA जो UPA के NSA थे, उन्होंने कहा कि this minister looked at it, that minister looked at it, सब लोग मिले, बहुत एनालाइज किया, वो प्लस माइनस देखा, फिर हमने डिसाइड किया that the cost of attacking Pakistan is more than the cost of not attacking Pakistan. तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद। So point is, something like Mumbai happens, and if you do not react to it, how can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं।
See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. Not surprisingly, there are many questions on China, and I would just acknowledge the names of few of them who have drafted very intelligent questions about China. Rohan Bokare, Akshay Rathod, Rahul Pangirkar, Chinmay Tendulkar, Shubham Pardeshi, Akshay Mandke, and many others. So, and these questions belong to India, China, Aksai Chin, and also in general BRI, and in the eventuality of having some conflict between Taiwan and or China or disturbances in South China Sea. So they would like to know your comments about it. तो कहाँ से शुरू करें? इंडिया चाइना. देखिए, I think we should all be clear. In many ways, India and China are very unique. They are unique because एक तो हम दो ही देश हैं जिनकी आबादी जो है बिलियन लोगों से ज़्यादा है. ये भी है कि हम दोनों बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और एक समय था जहाँ we would economically dominate the world. उसके बाद वेस्टर्न पावर्स आए तो ठीक है, we went through 200 years of difficulty. But today, China and India definitely आज वो नंबर 2 इकोनॉमी बन चुके हैं. हम 5वें में हैं. हम अगले 2-3 साल में तीसरे में पाएंगे. अब ये रियलिटी है. पर ये भी है कि चाइना पड़ोसी है. उनके साथ और किसी भी पड़ोसी के साथ ये बॉर्डर सेटलमेंट जो है ये एक किस्म से चुनौती होती है. अब ये भी मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जानना चाहूँगा, क्योंकि हिस्ट्री से अगर हम सबक न सीखें तो वो गलती हम बार बार करते जाएंगे. 1950 में आप जानते हैं 47 में हमारी इंडिपेंडेंस हुई. 1949 में चाइना में रेवोल्यूशन हुआ. 1950 में चाइनीज मिलिट्री PLA जो है वो तिब्बत गए और तिब्बत का उन्होंने कब्जा कर लिया था. तो 1950 के एंड में उस समय सरदार पटेल, और ये तो एक्चुअली लिटरली वन ऑफ द लास्ट थिंग्स बिफोर ही पास्ड अवे, उन्होंने ही रोट अ वेरी लॉन्ग लेटर टू पंडित नेहरू. एंड उनकी चिंता ये थी, उन्होंने कहा that I am very disturbed at the manner in which we are dealing with China. We are believing everything that they are saying. But अगर आप उनको माने seriously देखें, I don't think we should take their assurances at face value. उनकी नियत जो है, there is a question mark. We are today in a situation where for first time in history, India has two front problem. This front and that other front. Now, therefore, we should make preparations for this. पंडित नेहरू का कमेंट कुछ दिन बाद था कि आप थोड़ा ज़्यादा ही शक कर रहे हैं. ये जो हैं दे आर ऑल्सो एशियन पीपल, और वो उनके यहाँ हमारे खिलाफ ऐसी कुछ सोच नहीं है. उन्होंने तो बार बार कहा है कि वो दोस्ती ही चाहते हैं. फिर वो कहते हैं ये असंभव है कि वो हिमालय को क्रॉस करके भारत को अटैक करें. असंभव है. ओके, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि एक की एनालिसिस जो है, सरदार पटेल अगर आप सोचें बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे, बड़े ग्राउंडेड आदमी थे, बड़े रियलिस्टिक आदमी थे. पंडित नेहरू जो थे आइडियोलॉजिकल आदमी थे, लेफ्टिस्ट आदमी थे. उनको लगता था कि आइडियोलॉजी के कारण जो कभी कभी पड़ोसियों के बीच में प्रॉब्लम भी होती है कि वो प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मैं हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूं क्योंकि चाइना के साथ हमें हर समय रियलिस्टिक, ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल पॉलिसी रखनी चाहिए.
अब मैं हिस्ट्री की घड़ी में आगे ले जा रहा हूँ। बात उसके बाद कहाँ बढ़ी, 10 साल बाद, 7-8 साल बाद हमें पता चला कि वो अक्साई चिन्ह, क्योंकि आपने अक्साई चिन्ह का जिक्र किया था, अक्साई चिन्ह के थ्रू एक रोड बना रहे हैं। हमें नहीं बताया कि रोड बना रहे हैं, तो हमें पता चला कि हमारे टेरिटरी के थ्रू रोड बन रहे हैं। तो हमने अपना ऑब्जेक्शन वहाँ जाहिर किया। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो जवाब नहीं दिया, उसके बाद कहा कि भाई ये आपकी ज़मीन नहीं है, अब हमारी ज़मीन है। तो अब देखिए 57 से 62 तक जब युद्ध हुआ, हमारी डिसएडवांटेज क्या थी कि वो जो है अपना रोड बना रहे थे, वो अपनी फौज भेज रहे थे, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। हम लोग जो हैं, हम अपनी दुनिया में रहे कि भाई वो भी, हम भी नॉन अलाइंड हैं, वो भी पोस्ट नॉन वेस्टर्न है, हमारा कुछ आइडियोलॉजिकल संबंध है। तो कम से कम 62 से सबक तो मिलना चाहिए कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयारी करनी चाहिए। पर 62 से 2014 तक सरकार की सोच क्या थी कि हम बॉर्डर में कुछ तैयारी न करें, फिर चाइनीज जो है उसका, क्योंकि उसको ऐसे ही छोड़ दें तो न हम जा पाएंगे न वो आ पाएंगे, ये सोचते। उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा that best defense is to leave the border without development. अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बजट था 3,500 करोड़, आज बजट जो है 14,500 करोड़।